Hello everyone. So today I'm going to discuss 10 questions on nervous system. This is the day 7 of quiz analysis. This is my Telegram channel Psychology Quizzes. You can search it by typing PsychQuiz1 on Telegram and attempt the question. So those who haven't done yet all the questions that I have given yesterday, they can do so by pausing the video right now. The question number 1 is parasympathetic nervous system is the part of. So there are divisions like we have central nervous system and then peripheral nervous system. After that, peripheral nervous system has two parts, autonomic and somatic nervous system. So autonomic nervous system के अंदर there are two parts, that is parasympathetic and sympathetic division. तो parasympathetic nervous system इसमें पूछा है कि वो किसका part है. So the answer is autonomic nervous system. This is the diagram. You can have a look of it. Like peripheral has autonomic and somatic. There are two parts. Then autonomic nervous system is divided further into sympathetic and parasympathetic. So autonomic के इसलिए होता है, it is responsible for associate autonomic with automatic. Okay. So all the automatic functions are controlled by autonomic nervous system. Okay. So then autonomic के अंदर दो चीज़ें आती हैं. Sympathetic जो भी emotions के टाइम पे या किसी भी ऐसी emergency situation के टाइम पे it arouse our body and gets us ready. Okay, and parasympathetic is the nervous system which activates during our relaxation time. So right now you are in a relaxed state and this is the parasympathetic nervous system which is activated right now. Then somatic nervous system is for controlling voluntary movements. Okay. Next question is the nervous system allows organism to sense, organize and react to information in the environment. Correct. This is the definition of basic nervous system कि क्या होता है, basic definition है ये. उसके बाद the basic unit of the nervous system is the neuron. तो neurons के through nervous system हमारा communicate करता है with the synapses. Synapses के through there are neurotransmitters which secrete and it is the neuron that is the basic unit जो nervous system को बनाता है पूरा. So these two are the correct statements individually, but reason is not the correct explanation of assertion. So this is I have written a small explanation like the basic unit of nervous system is a neuron and this is the synapse from between the neurons जो कि दोनों को communicate करने के लिए help करता है synapse. Okay, so like PNS that is the peripheral nervous system, हम वहाँ से कोई जो हमारा PNS होता है that receives any information and passes it to CNS, that is CNS के अंदर क्या included होता है, our spinal cord and our ब्रेन. तो लाइक अगर मैं एक छोटा सा बहुत एग्जाम्पल लूँ, लाइक यू टच अ हॉट पॉट एंड यू जस्ट टेक योर हैंड बैक. तो दिस प्रोसेस इज सिंपली गवर्न्ड बाय नर्वस सिस्टम. ये जो प्रोसेस होता है इसको गवर्न करते हैं नर्वस सिस्टम. सो ये बेसिक सा एक एग्जाम्पल है. इसी तरीके से अगर आपकी कोई भी ऐसा बॉडी रिएक्शन है, ठीक है, तो वो होता है लाइक आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, आपके सामने एक एक्सीडेंट हो गया या सडन, तो इट इज़ द नर्वस सिस्टम विच रिएक्ट्स, विच डोमिनेट्स. तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, दैट इज़ वाई आई हैव एडेड दिस क्वेश्चन ये एक्सप्लेन करने के लिए. और लाइक अगर मैं और कोई एग्जांपल दूँ तो या इस तरह आप समझ सकते हैं. आई थिंक यू हैव गॉट एन आइडिया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है. उस तरह जैसे मान लीजिए अगर आप फेंट हो जाएं तो फेंट होने का रीज़न क्या होता है, दैट योर नर्वस सिस्टम डजंट कम्युनिकेटेड वेल एंड पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम था जो ओवरवर्क कर दिया वो, ठीक है. तो दैट इज़ वाई योर बॉडी गॉन फेल. तो आई होप दिस इज़ क्लियर व्हाट द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज़. उसके बाद लास्ट में लाइन लिखी हुई है, द न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन्फॉर्मेशन टू द CNS आर नोन एज द एफरेंट न्यूरॉन्स. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूरॉन, एफरेंट एंड इफरेंट, जो कि हमारे सिंपैथेटिक सोमैटिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है. दो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं. तो सेंसरी न्यूरॉन्स को हम लोग एफरेंट AFF ओके ये भी बोलते हैं एंड मोटर न्यूरॉन्स को हम EFF इफरेंट बोलते हैं. तो जो एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंसेस, हमारे सेंस ऑर्गन से लेके वो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ट्रांसफर करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन्स. एंड इफरेंट न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू आवर मसल्स, ठीक है, या हमारे ग्लैंड्स यहाँ तक की. तो दीज टू एफरेंट न्यूरॉन्स एंड इफरेंट न्यूरॉन्स आर द पार्ट ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम बिकॉज दे आर सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री कंट्रोल. तो ये चीज़ भी वॉलेंट्रीली है. ओके, ऑटोनॉमिक में सारी चीज़ें ऑटोनॉमिक होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं. सो दैट इज़ वाई ये उसमें नहीं होंगे. तो आपको याद करने में भी ईजी हो जाएगा इस तरह से कि किस में होगा ये. Next question is we have to match the column with this is the speech production at last in D option, control higher order function and speech production. Okay, तो frontal lobe का आंसर क्या होगा, that it is D.
1 का डी. ओके, लाइक इट कंट्रोल्स हायर ऑर्डर फंक्शन. हायर ऑर्डर फंक्शंस में क्या होंगे कि जो भी हमारा प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, थिंकिंग है, रैशनल डिसीजन लेना, वो सारा फ्रंटल लोब का काम होता है. एंड स्पीच प्रोडक्शन किस लिए? बिकॉज जो हमारा ब्रोका एरिया होता है तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन, और ब्रोकाज एरिया इज इन फ्रंटल लोब. उसके बाद पेराइटल लोब इज़ कंट्रोल सोमैटिक फंक्शन. तो दीज आर द 4 लोब्स, ठीक है, जो हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होते हैं. तो फ्रंटल लोब इज, अभी आगे आपको आई विल शो यू द पिक्चर. This is the picture. So this part is frontal lobe, the front one. Then this parietal red area. In the yellow area is temporal lobe, and at the last orange area is this occipital lobe. Okay. Then occipital lobe control vision, and temporal lobe controls hearing and speech comprehension. तो temporal lobe का काम क्या है? Speech comprehension में भी यूज़ होता है. तो speech comprehension, the area Wernicke's area, that is responsible for speech comprehension. तो इससे the answer is 3. I hope it's clear. Then Wernicke's area is a region of the brain that is important for language development. It is located in the temporal lobe of the left side of the brain and is responsible for the comprehension of speech. तो comprehension of speech का मतलब कि हम जो भी सुन रहे हैं उसको comprehend करना, यानी उसको हमका मीनिंग फॉर्म करना. ठीक है, तो जिनका वर्निकाइज एरिया डैमेज होता है तो दे आर अनेबल टू गेट और ट्रैप या मीनिंग निकालना. ठीक है, वो किसी भी सेंटेंस से मीनिंग नहीं निकाल पाते, उनको मीनिंग समझ नहीं आती. और जिनका ब्रोकाज एरिया डैमेज होता है तो उनके लिए जो भी स्पीच प्रोडक्शन है वो मुश्किल होता है, वो बोल नहीं पाते. उनको चीज़ें समझ में आ रही होती बट वो बोल नहीं पाते. आई होप इट्स क्लियर. नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम हेयर. दिस इज़ द ब्रोकाज एरिया एंड दिस पार्ट इज़ द वर्निकीज एरिया. तो वर्निकीज एरिया, दिस इज़ द टेम्पोरल लोब एंड दिस इज़ द फ्रंटल लोब. दिस एरिया इज़ parietal लोब एंड दिस एरिया इज़ occipital लोब. You can take the screenshot of this. Next question is brain stem is made up of. तो brain stem, that is the stem, ठीक है, तो वो किस चीज़ से बनती है? तो the answer is midbrain and pons and this medulla. Okay, so 1, 2 and 4 is the correct option. Like जो midbrain होता है that is mostly responsible for, like it has tectum and tegmentum, ये 2 parts होते हैं midbrain के अंदर जो कंट्रोल करती हैं फंक्शंस लाइक हमारे ऑडिटरी एंड विजुअल फंक्शन. सो दैट इज़ नॉट द मैटर ऑफ दिस कि क्या है. पॉन्स का मैं थोड़ा सा बताती हूँ. दैट इट इज़ अबाउट कि आपका जो कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते टाइम, लाइक इट इज़ लोकेटेड इन, let me remind, it is located below midbrain. Okay, and like it is responsible for reflex action. Okay, like कोई भी chewing है या tasting, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉन्स का काम होता है. वहीं जो मेडुला होती है that regulates हार्ट और हार्ट रेट और ब्लड वेसल फंक्शंस एंड डाइजेशन एक्सेट्रा. तो ये सारे काम मेडुला के होते हैं. आई होप इट्स क्लियर. दिस आई हैव रिटन हियर. यू कैन हैव अ लुक ऑफ इट एंड रीड इट. Then question number 5 is the autonomic nervous system has 2 complementary parts, the sympathetic nervous system and the somatic nervous system. So this assertion is incorrect. Why? Because I have just told that autonomic nervous system has 2 parts, that is parasympathetic and sympathetic nervous system. वहीं जो somatic nervous system होता है ये peripheral nervous system के 2 parts में आ जाता है. like peripheral के autonomic और somatic 2 parts होते हैं. I hope this is clear. You can have a look of that diagram again. Then reason is sympathetic nervous system which activates the fight or flight or freeze stress response. So this is the correct कि sympathetic nervous system is responsible for fight, flight और freeze response. like अगर कोई भी emergency situation होती है तो हम या तो लड़ते हैं या तो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं या तो वहीं पे freeze हो जाते हैं. So these are the 3 responses which we generally give in any stress situations. Okay, so assertion is incorrect and reason is correct. वहीं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो ऑटोनॉमिक के 2 पार्ट्स होते हैं, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. तो पैरासिम्पैथेटिक का जो सेकंड पार्ट वो है रिस्पॉन्सिबल है रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कामिंग एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ फॉर अराउजल. ओके, देन आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो ऑटोनॉमिक आई हैव टोल्ड कि एसोसिएट ऑटोनॉमिक विद ऑटोमेटिक. तो अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं जो ऑटोमेटिक है, जिसमें आपको खुद कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन वॉलंटरी एंड अनकॉन्शियस एक्शन दे आर ऑटोमेटिक. इंटरनल ऑर्गन फंक्शन आर ऑटोमेटिक. ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट बीट are automatic. Voluntary movements are not automatic. These are voluntary. Then fight or flight response is of autonomic का, that is sympathetic nervous system का काम होता है. Rest and digest का parasympathetic. So sympathetic and parasympathetic both are the part of the autonomic nervous system. Okay, so the answer will be last one. इसमें 8 point नहीं लिखा है वो भी होगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 8 are the correct option.
उसके बाद आइडेंटिफाई द बॉडी सिम्टम ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो लाइक कौन कौन से सिम्टम्स होंगे जो पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पे एक्टिवेट होंगे। तो पैरासिम्पैथेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट काम अस, ठीक है। तो राइट नाउ यू आर इन अ काम सिचुएशन, तो नोटिस दैट whether your pupil is constricted or dilated, okay, so it is constricted। तो इसका जो रीज़न होता है लाइक कंस्ट्रिक्ट और डायलेट में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो कि कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है, या नॉर्मल कंडीशन में आप कह सकते हो। डायलेट का मतलब होता है फैलना, ओके, टू एक्सपैंड। तो डायलेट प्यूपिल कब होती है, लाइक अगर आप ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जा सके एंड वी आर एबल टू टेक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है हम उसको ज़्यादा बेटर तरीके से इनपुट ले सके उसका। तो दैट इज़ वाई किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे हमारी प्यूपिल डायलेट होती है। लाइक जब हम डरते हैं तो सबसे पहले हमारी जो आँखें हैं, देयर इज़ अ फ्रेज ऑल्सो दैट कि आँखें फटी रह जाना। तो दैट इज़ कि हमारी जो प्यूपिल है इट बिकम्स डायलेटेड ताकि जो लाइट है वो ज़्यादा अंदर जा सके एंड वी कैन एबल टू टेक द इन्फॉर्मेशन मोर प्रॉपरली। उसके बाद सेलेवेशन है, तो सेलेवेशन पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पे एक्टिवेट रहता है, ठीक है। हमारा गला मोस्टली डर की सिचुएशन में या किसी भी अराउजल के टाइम पे हमारा गला सूखता है। सो 1 and 3 इज़ द राइट ऑप्शन। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। लाइक सिंपैथेटिक में डायलेट प्यूपिल एंड इनहिबिट सेलेवेशन, ओके, एंड पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल एंड स्टिमुलेट सेलेवेशन, ओके। ना अरेंज द फॉलोइंग स्पाइनल नर्व्स इन सीक्वेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं आपको इनको अरेंज करना है। सो ये दीज आर द करेक्ट वन जो लाइन से लिखी हैं, क्रेनियल, सर्वाइकल, thoracic, lumbar and sacral। This is the diagram, you can have a look of it. The first one is cervical, then thoracic, then lumbar, then sacral and then coccygeal or coccyx, okay। तो cervical के ऊपर होता है cranial nerve which are of 12 in numbers, okay। Next question is which of the following is involved in the physiological processing of emotion? Now you have to relate nervous system and emotions. तो limbic system it is our emotional mind, hypothalamus, thalamus, okay, so these are the parts of limbic system। तो emotional brain होता है, that is वो emotions सारे govern करता है। Then autonomic nervous system either sympathetic or parasympathetic, both are controlled by autonomic nervous system। Then reticular activation system it is help us to make us arouse or it is responsible for wakefulness, कि ये हमें ज़्यादा अलर्ट रखता है और जिससे कि हम कोई भी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो बेटर तरीके से इनपुट ले सकें। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। This I have written here, like limbic system, autonomic nervous system and reticular activating system all interact in the physiological processing of emotion। तो limbic system का क्या काम होता है, that it is it categorizes human emotional experiences as either pleasant or unpleasant mental states। जो भी neurochemicals होते हैं वो secrete होते हैं यहाँ से। उसके बाद autonomic nervous system जो है कि together with the hypothalamus regulate pulse, blood pressure, ये सारी चीज़ें breathing, arousal and response to emotional cues, ठीक है। emotional cues को के response में ये सारी चीज़ें होती हैं। Then जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है इट इज़ बिलीव्ड टू फर्स्ट अराउज द कॉर्टेक्स एंड देन मेंटेन इट्स वेकफुलनेस। तो पहले तो ये अराउज करता है हमको, दैट इट प्रिपेयर्स अस एंड मेक अस रेडी फॉर एन इमरजेंसी सिचुएशन और फॉर एन अराउजिंग सिचुएशन एंड देन इट मेंटेन्स दैट वेकफुलनेस ताकि हम इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा बेटर तरीके से ले सकें, ओके, और ज़्यादा बेटर तरीके से इंटरप्रेट कर सकें अपने इमोशंस को। लास्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो एंडोक्राइन सिस्टम यूजेस केमिकल सिग्नलिंग, करेक्ट। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, दैट इट रिलीजेस हार्मोन्स। तो हार्मोन्स दे आर केमिकल्स। देन नर्वस सिस्टम यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो न्यूरो ट्रांसमीटर का ट्रांसमिट होना, दैट आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। द नेक्स्ट इज द सिग्नल ट्रांसमिशन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड। तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं दे आर फास्ट, ओके, एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही कम वक्त के लिए होते हैं और उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है। और सिग्नल ट्रांसमिशन इन द एंडोक्राइन सिस्टम इज स्लो। जो हार्मोन्स होते हैं दे आर स्लो, ठीक है, वो इतनी जल्दी सेक्रीट नहीं होते, दे टेक टाइम बट द रिस्पॉन्स टेंड टू लास्ट लॉन्गर। लेकिन जो भी उसका रिस्पॉन्स होता है वो यानी कि अगर किसी भी हार्मोन्स के सेक्रीट होने के बाद वो ज़्यादा उसकी जो एबिलिटी है, जो भी फंक्शन है उसका, वो ज़्यादा वक्त तक की रहता है। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। सो दिस आई हैव रिटन हियर ऑल द समरी फॉर्म इन द, you can have a look of it। So these were the 10 questions of today's. If you have any doubt in any of the question, you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Have a good day ahead.